Hello everyone. Previously we had discussed about the slave dynasty that was the first dynasty in Delhi Sultanate, and today we will discuss about the second one, that is the Khilji dynasty. So Khiljis were of Turkish Afghan origin who, despite their role in resisting Mongol invasions, were not recognized much in Delhi. तो जो खिलजीज थे वो टर्किश अफगान ओरिजिन के थे, और जब स्लेव डायनेस्टी थी तो उस टाइम पे वो मंगोल इन्वेजन्स को काफ़ी इफेक्टिवली रेजिस्ट करते थे, बट उतना उनको रिकॉग्निशन दिल्ली में नहीं मिला था. सो दे रूल्ड फ्रॉम 1290 to 1320 CE, that is for 30 years. So they were the shortest ruling dynasty of Delhi Sultanate. So they ruled Delhi Sultanate for the shortest duration, that is just for 30 years, from 1290 to 1320 CE. So the dynasty was founded by Jalaluddin Khilji. So Jalaluddin Khilji was the founder of Khilji dynasty. Map में देखें तो this pink part is the extent of Khilji dynasty at its peak. So the first ruler, the founder, was Jalaluddin Khilji, who ruled from 1290 to 1296 CE. So Jalaluddin Firoz Shah Khilji was the founder of Khilji dynasty and ruled from 1290 to 1296 CE. तो 6 साल के लिए he ruled and was the founder of this dynasty. He checked the monopoly of Turkish nobility and followed the policy of tolerance and avoided harsh punishments. तो जो टर्किश नोबिलिटी थी, जैसे पहले तुर्कनी चहलगनी थे, फिर बरीद्स आ गए, जो एक नोबिलिटी पावर थी, वो जो स्टेट के इंटरनल अफेयर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते थे. तो जलालुद्दीन खिलजी ने ये मेक श्योर किया कि वो तुर्किश नोबिलिटी की जो पावर थी, उनकी जो रूलिंग के ऊपर मोनोपोली थी, उसको वो चेक में रखे. एंड along with that, he followed a policy of tolerance and avoided harsh punishments. However, he was treacherously killed by his nephew and son-in-law Alauddin Khilji, who became the next ruler. So he was a tolerant ruler, but he was killed. तो धोखे से उसको मार दिया गया था by his nephew and son-in-law Alauddin Khilji. तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर he became the next ruler in 1296. Then is the Alauddin Khilji, who ruled from 1296 to 1316 CE. So his real name was Ali Gurshasp and he took the title of Sikandar Sani. तो उसका असली नाम जो था that was Ali Gurshasp and he took the title Sikandar Sani. So Sani मतलब equivalent. So he used to consider himself as an equivalent ruler of Sikandar, that is Alexander. तो अलेक्जेंडर के लेवल का ये अपने आप को मानता था, तो इसलिए ये बोलता था कि ये सिकंदर का सानी है, दैट इज सिकंदर सानी का टाइटल ले लिया इसने. देन ही बिल्ट सीरी फोर्ट एंड अलाई दरवाजा, विच इज द एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली. So this one is Siri Fort and this is Alai Darwaza, which is the entrance for the Qutub Minar complex of Delhi. Then he was a ruthless ruler who gave severe punishments even to his own family members. तो जहाँ जलालुद्दीन खिलजी was a tolerant ruler, but Alauddin Khilji was a ruthless ruler, जो कि बहुत सवियर पनिशमेंट्स देता था इवन टू हिज ओन फैमिली मेम्बर्स. तो इसने अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत जगह पे अलग अलग रीजंस की वजह से मार दिया था, बिकॉज दे रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, तो ही किल्ड देम. सो ही वॉज अ रूथलेस रूलर. He took multiple measures to strengthen his army and prevent the nobles conspiring against him. तो जिस तरह से तुर्कने चहलगनी थे, स्पाइस का एक ग्रुप था, एक नोबिलिटी का ग्रुप था, उसके बाद में बलबन के टाइम पे बरीज आ गए, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड द नोबल्स हु वुड नॉट कंस्पायर अगेंस्ट हिम. तो इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, उसको चेक रखने के लिए भी ही हैड सम स्पेशल पर्सन्स रिक्रूटेड फॉर दैट पर्पस. वन ऑफ हिज स्लेव वॉज मलिक काफूर, हु वॉज ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी, was also a commander of Alauddin Khilji's forces
who led many successful military campaigns in India, including defeating the Mongol invaders in 1306. तो अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था who was मलिक काफूर, और उसका एक कॉमन एक पॉपुलर नाम था हजार दिनारी. तो हजार दिनारी नाम इसीलिए पड़ा बिकॉज he was purchased for 1000 dinars by अलाउद्दीन खिलजी's जनरल. तो उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया हजार दिनारी. सो ही वॉज अ कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज फोर्सेस, और काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स को सक्सेसफुली उसने लीड किया था, इंक्लूडिंग डिफीटिंग द मंगोल इन्वेडर्स इन 1306. सो नाउ सम ऑफ द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो देवागरी था जहाँ पे यादव्स का रूल था. देन द्वार समुद्रम जहाँ पे होयसालास का रूल था. देन मदुराई में पांड्यास थे. वारंगल ककातियास थे. इस तरह से उसने गुजरात में भी अटैक किया था, चित्तौर में भी अटैक किया था, रणथंभौर में, मांडू में. तो अलग अलग जगह पे ही लेड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स, और इसी तरह से उसने जो दिल्ली सल्तनत का एक्सटेंट था अपने रूल के अंडर उसको इंक्रीज किया था. सो नाउ चित्तौर के बारे में, चित्तौड़गढ़ की जो स्टोरी है उसके बारे में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है इन हिज बुक पद्मावत. So he has mentioned about the invasions of Alauddin Khilji and Malik Kafur in the region of चित्तौर. So चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे जब उसने अटैक किया था तो उसके बारे में पद्मावत दैट इज अ लॉन्ग पोएम उसमें मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है. और उसी में ही एक और इंसिडेंट्स के बारे में लिखा है दैट इज द जौहर. तो जौहर वॉज मास सेल्फ इमोलेशन इन अराउंड 1540 CE के टाइम पे ये उसने लिखा था पद्मावत में. सो ही डिस्क्राइब्ड दैट रानी पद्मिनी और पद्मावती एंड अदर राजपूत विमेन दे कमिटेड जौहर टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर rather than being captured by Alauddin Khilji's forces who were attacking on the चित्तौड़गढ़ फोर्ट. तो अपने आप को बचाने के लिए रानी पद्मिनी और रानी पद्मावती एंड अदर राजपूत विमेन दे committed mass self-immolation, so they jumped into that kund of fire and ended their life. So that is the जौहर. तो उसके बारे में भी पद्मावत में जिक्र किया गया है. Then are the reforms of Alauddin Khilji. So the first one is that he checked the power of nobles and prevented them conspiring against him. तो जो उसकी कोर्ट में इम्पॉर्टेंट पावरफुल लोग थे, जो नोबल्स थे, उनकी पावर को भी उसने चेक में रखा और ये भी ध्यान रखा कि वो उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी ना करे. ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ दाग दैट इज ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस एंड चेहरा और हुलिया दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स. तो दो तरह की सिस्टम उसने स्टार्ट किया. द फर्स्ट वन इज दाग जिसमें देयर वॉज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. तो जैसे इस पिक्चर में लिखा है तो इस तरह से जो हॉर्सेस थे उनके ऊपर एक मार्क छोड़ दिया जाता था दैट वाज एक्टिंग एज देयर आइडेंटिटी. और सेकंड वन वाज चेहरा या हुलिया. तो दैट वाज अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स कि सोल्जर्स हुलिये में, चेहरे में कैसा है, तो उसका भी एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया गया फॉर एवरी सोल्जर. सो दिस वाज द चेहरा और हुलिया एंड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस दैट इज दाग. देन ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ commodities in the market in order to feed the large standing army. तो उसने सिंस मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे, मिलिट्री काफ़ी बड़ी थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो उसको फीड करने के लिए उसने जो मार्केट थी उसमें जो भी कॉमोडिटीज थी उसका प्राइस फिक्स कर दिया था. सो ही एलिमिनेटेड स्मॉल इक्तादार्स एंड इंट्रोड्यूस्ड दीवाने मुस्तखराज दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट. तो जो स्मॉल इक्तादार थे उनको उसने रिमूव कर दिया था और उसकी जगह पे उसने इंट्रोड्यूस किया था एक अलग डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट दैट वाज दीवाने मुस्तखराज. नो इक्ताज वर अवॉर्डेड इन गंगा यमुना दोआब रीजन एंड द टैक्स वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द स्टेट. सो जो गंगा यमुना दोआब रीजन था उसमें कोई भी इक्ता अवार्ड नहीं किए गए थे और जो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता था वो दैट वाज डायरेक्टली बाय द स्टेट. तो ये मिडल मैन जो थे बीच में ये नहीं थे. तो वो टैक्स जो था उसको कलेक्ट करने के लिए अमील्स were the persons they were hired for land revenue collection. He started collecting higher taxes from khoots and mukaddams who were the local landlords. तो local landlord जो थे
जिनको खूत या मुकद्दम बोलते थे, उनसे भी उसने ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था. Then he became the first Delhi Sultan to start paying his soldiers in cash. तो उसने अपने सोल्जर्स को कैश में पे करना स्टार्ट किया था. सो ही बिकेम द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू डू दैट. All the Banjaras who were the merchants, they were registered and any type of hoarding was severely punished. तो जितने भी मर्चेंट्स थे, बंजारास थे, उनको रजिस्टर कराना पड़ता था, और अगर कोई होर्डिंग करता था तो उसको बहुत severely पनिश किया जाता था. He forbade all festivities, wines and intoxicants and instituted a spy network to ensure that no one conspired against him. तो जैसे बलबन के बरीद्स थे, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्पाइस का नेटवर्क एक बनाया था, सो दैट कोई भी नोबल जो था वो उसके अगेंस्ट कंस्पायर ना कर सके. और साथ में उसने जितनी भी फेस्टिविटीज मनाते थे, वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट्स जो थे, उनको भी बैन कर दिया था. मैरिज बिटवीन नोबल फैमिलीज कुड नॉट अकर विदाउट सुल्तान्स परमिशन. तो सुल्तान की परमिशन के बिना जो नोबल फैमिलीज थी वहाँ की, उनमें कोई भी मैरिज नहीं हो सकती थी. Then he did not accept the authority of Khalifa. So according to Ziauddin Barani, he became the first Delhi Sultan to separate state and religion. So this is an important point, that he did not accept the authority of Khalifa. And according to Ziauddin Barani, उसने बोला था कि ये first Delhi Sultan था जिसने state and religion को separate किया था. Then Amir Khusro was the court poet of Alauddin Khilji, who was a follower of Sufi saint Nizamuddin Auliya. तो अलाउद्दीन खिलजी की जो कोर्ट थी उसमें एक पोइट थे, ही वॉज अमीर खुसरो, हु वॉज अ फॉलोअर ऑफ सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया. ही वॉज ऑल्सो नोन एज तूतिए हिंद, दैट इज द पैरट ऑफ इंडिया. ही इज एसोसिएटेड विद सितार इंस्ट्रूमेंट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ कवाली. तो अमीर खुसरो के साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि एक तो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया, देन ही वॉज ऑल्सो नोन एज तूतिए हिंद, he was associated with the sitar instrument and is considered to be the father of Qawwali. Then we come on to the decline of Khiljis. So after the death of Alauddin Khilji, Malik Kafur appointed Sahibuddin, who was the minor son of Alauddin Khilji, as the next ruler. तो जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में मलिक काफूर जो है वो साहिबुद्दीन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही छोटा बेटा था, उसको मलिक काफूर ने अपॉइंट कर दिया एज द नेक्स्ट रूलर. हाउएवर, मलिक काफूर वाज असैसिनेटेड एंड अनदर सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, बिकेम द सुल्तान. तो जब मलिक काफूर ने साहिबुद्दीन को नॉमिनेट कर दिया था एज द नेक्स्ट रूलर, तभी मलिक काफूर वॉज असैसिनेटेड. तो मलिक काफूर की डेथ हो जाती है एंड अलाउद्दीन खिलजी का एक और सन, हु वॉज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ही बिकेम द सुल्तान एंड ही वॉज द लास्ट खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली. However, he was also killed by his trusted friend Khusro Khan along with the entire family of Alauddin Khilji. तो मलिक काफूर ने साहिबुद्दीन को नॉमिनेट किया, बट मलिक काफूर वॉज असैसिनेटेड. उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का एक और बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, वो सुल्तान बनता है, बट ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज ट्रस्टेड फ्रेंड खुसरो खान अलॉन्ग विद अलाउद्दीन खिलजी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाता है. दे वर ऑल किल्ड एंड देन खुसरो खान ही असेंडेड द थ्रोन. So Khusro Khan was a Ghazi Malik and not a Khilji. तो खिलजी वंश से वो नहीं था खुसरो खान, he was a Ghazi Malik. He declared himself as the new ruler and ruled till 1320 when he was killed by Ghiyasuddin Tughlaq, who then founded the Tughlaq dynasty of Delhi Sultanate. तो मलिक काफूर ने साहिबुद्दीन को अपॉइंट किया, देन उसके बाद में मलिक काफूर की डेथ हो जाती है, तो मुबारक शाह जो है वो सुल्तान बनता है, बट मुबारक शाह को अगेन खुसरो खान मार देता है. तो जब खुसरो खान गद्दी पे बैठता है तो 1320 तक वो रूल करता है एंड अगेन ही वाज किल्ड बाय घियासुद्दीन तुगलक, हु देन फाउंडेड द नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो इस तरह से सीरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज थी जिसमें एक के बाद एक रूलर का मर्डर होता जाता है एंड फाइनली एक नई डायनेस्टी बनती है, दैट इज the Tughlaq dynasty that was founded by Ghiyasuddin Tughlaq.
तो इस तरह से खिलजी डायनेस्टी है जो उसका एंड होता है, और जो थर्ड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, द तुगलक डायनेस्टी, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द खिलजी डायनेस्टी. तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द सेकंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट वाज द खिलजी डायनेस्टी. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड डायनेस्टी, दैट वाज तुगलक डायनेस्टी.